ہمارے جسد کی طرف ایک رخ مدبر ہے تو عالم کی بھی صرف ایک ذات واجبہ مدبر ہے۔ بہرحال ہمارے عجز سے اس کی قدرت کا، ہمارے جہل سے اس کے علم کا، ہماری مردگی و موت سے اس کی حیات کا، ہمارے عدم سے اس کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ اس کنٹینٹ میں ہم فس آدمیہ یعنی الحکمت آدمیہ کے بارے نظر ڈالیں گے۔ اس ابتدائیہ کی اہمیت یہ ہے کہ چیپٹر 1 کی ڈسکشن سے پہلے بہت سے ایسے الفاظ جن کے معنی جاننا لازم ہے، ورنہ چیپٹر 1 میں ایسی تفاصیل ہیں کہ جن کو الفاظ میں نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ تو ان پر غور کیا جاتا ہے۔ اس گفتگو میں مادہ کا انسان سے تعلق، مادہ کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح معرفت نفس یعنی اپنے نفس کی پہچان کیوں ضروری ہے، مخدوم اور عدم کے درمیان انسان کا سفر، حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام یعنی مقدس فرشتے انسان کے کس کس مقام پر ہیں اور ان کا انسان کی عقل، دل اور باقی کن صفات سے تعلق ہے، تجلی عظیم شان الواحیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ انتہائی اہم فیض اقدس، معلومات الہی یعنی عیان ثباتہ، روح قدس، تجلیات واحیت، واجب بالذات، ممکن بالذات اور ممتنع بالذات کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے، اور وہ کون سی دو صفات ہیں جو انسان کے اندر ہر صورت میں بلکہ تمام عالم کے اندر ہر صورت میں نہیں پائی جاتی، اور حق تعالی شانہ کی اہم شان کیا ہے، ڈسکشن کریں گے اس گفتگو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشق حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مقالے یعنی آرٹیکل کو فس سے تعبیر کرتے ہیں۔ فس کے معنی ہیں نگینے اور خلاصے کے۔ جس طرح نگینے پر عبارت کنارہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک نبی کے دل کو ایک حکمت اور مسئلے اور تجلی اور انکشاف سے نسبت خاص رہتی ہے۔ فس آدمیہ یعنی چیپٹر 1 میں شیخ نے مسئلہ خلافت کو بیان کیا ہے۔ تمام عالم کو بمنزلہ جسد کے فرض کرتے ہیں اور تجلی اعظم اور شان الواحیت کو بمنزلہ روح کے۔ شیخ تمام عالم کو انسان کبیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عالم میں جو کچھ ہے وہ مظہر اسماء الہیہ ہے۔ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا تھا عالم تن بے جان تھا، اس میں حاکمانہ شان کا مظہر نہ تھا۔ انسان پیدا ہوا تو گویا عالم کے تن میں جان آ گئی اور وہ مکمل انسان ہو گیا۔ جس طرح انسان میں قوی ہیں اور ان کے محل ہیں، اسی طرح انسان کبیر یعنی عالم میں ملائکہ ہیں۔ انسان میں قوت علمی ہے اور اس کا مرکز دماغ ہے۔ انسان کبریہ عالم میں بھی قوت علمی ہے اور اس کا مرکز جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انسان میں قوت حیات ہے، انسان کبیر میں بھی قوت حیات ہے اور اس کا محل میکائیل علیہ السلام ہے۔ انسان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، انسان کبیر کی موت کا مرجع عزرائیل ہے۔ انسان کبیر کا خیال عالم مثال ہے اور اس کا مرکز اسرافیل ہے۔ بعض ناواقف لوگ جو ہر غیر مربع کو غیر موجود سمجھتے ہیں، قوتوں کے محل سے انکار کر بیٹھتے اور ملائکہ کو صرف قوائے عالم ماننے لگے اور پھر شیخ کے اقوال سے استدلال بھی کرنے لگے یعنی مستفید بھی ہونے لگے۔ ہر قوت خود کو دوسری قوت سے اعلیٰ و افضل سمجھتی ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ دوسری قوتیں کیا کرتی ہیں اور ان سب پر حاکم و متدبر کون ہے۔ حاکم کو اعلیٰ ادنا سب سے نسبت اور ربط رہتا ہے۔ جزا دینا بھی اس کا کام ہے اور سزا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جب تک جامعیت نہ ہو حکومت محال ہے۔ ملائکہ بھی اپنے اپنے کمالات پر خوش ہیں، مثل من دیگرے تیست کا ترانہ گا رہے ہیں۔ جب حضرت انسان سے سابقہ پڑا علم کا علم سے مقابلہ ہوا تو سب کو اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے بنی اور انسان کا کلمہ پڑھتے ہی بنی۔ شیخ کہتے ہیں ماسوائے اللہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مستند اللہ نہ ہو۔ مادہ جس پر صورتیں آتی ہیں، جس پر اسماء و صفات کا پرتو پڑتا ہے، وہ ہے کیا؟ وہ عیان ثباتہ ہیں۔ معلومات الہی کو جو علم الہی میں ہیں عیان ثباتہ کہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔
अयान सबाता के इल्म में नुमायां होने को फैज़ अक़दस और मौजूद फिल हारिज होने को फैज़ मुक़द्दस कहते हैं। फैज़ अक़दस से चूँकि सिर्फ ज़ात व हक़ाइक़ इल्म में नुमायां होते हैं लिहाजा उसको जाल बसीयत कहते हैं, और फैज़ मुक़द्दस से ज़ात और वजूद का इक़्तरान होता है लिहाजा उसको जाल मुरक्कब कहते हैं। जिस तरह मौजूदात हारजी तहलीक में अल्लाह ताला के मुख्ताज हैं, इसी तरह मालूमात या अयान सबाता भी इल्म नुमाया होने में ज़ाते हक के मुख्ताज हैं। सिफ्त अपने मसूफ की तरह हमेशा मुख्ताज ही होती है। पस मादा भी जो ऐन सबाता है मुख्ताज इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह का मुख्ताज है। इसी तरह तजल्लियात इलाही भी ज़ात इलाही के मुख्ताज हैं, क्योंकि वो उसके सिफात हैं। बाज़ लोग मादे और रूह को गैर मुस्तनद अल्लाह समझते हैं, यानी रूह और मादे को गैर मुस्तनद अल्लाह समझते हैं और तीन बिलजात और मुस्तकिल मौजूद के कायल हैं। खुदा मादा या बेटा, रूह या जेविया, रूह मुकद्दस और तस्लियस के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। शेह अलैहि रहमा कहते हैं अयान सिबाता व तजलियात सब अल्लाह की तरफ मुस्तनद और उसी की ज़ात मुकद्दसा से मुंतज़ा व मफहूम हुए हैं। मौजूद बिलजात सिर्फ ज़ाते हक्का है, यानी हक्के ताला है। मुक्तदद और मुस्तकिल ज़वात से वजूद मुस्तकिल में शिरक लाजिम आता है। सूफिया के मुहावरे में इसमें अल्लाह कभी ज़ाते हक्का के लिए कहा जाता है, चूँकि वजूद उसके ऐन ज़ात है लिहाजा उसके मुकाबिल सिर्फ अदम है। जाहिर है कि अदम तो मौजूद ही नहीं, लिहाजा उसका कोई मज़र नहीं। और कभी इसमें अल्लाह कहते हैं सिफाते कमालिया का जामिया इसम मुराद लेते हैं, गोया ये अजमाल है। तमाम तफसील अस्मा व सिफात का उसका मज़हर, उसकी मरआत, उसका बंदा वो है जिसकी बिल्कुल नुमाइश ना हो, और तमाम अस्मा व सिफात इलाहिया उससे नुमाया व ताबान हो। हर ऐन सबाता पर तजल्ली हास होती है, यानी जब इंसान ऐन साबित यानी हक से जा मिलता है तो उसी सूरत में तजल्ली हास होती है और वो उनके मुहावरे में उसका रब कहलाती है, और ऐन सबाता उसका मज़हर व बंदा कहलाता है। तजल्ली अल वाहियत रब्बुल अरबाब और जामिया जमिया सिफात है, तो उसका बंदा, उसका मज़हर भी ऐन अल अयान और ऐन अल मुहम्मदी है। तमाम औसाफ व तजल्लियात अल वाहियत के तफासील हैं, तो तमाम अयान भी ऐन अल अयान के तफासील हैं। शेख कहते हैं मुमकिन है बंदे में हुआ वो कितना ही अजीमुल शान हो, आला मर्तबा हो, साहबे कमालात हो, मज़हर इस्माए सिफात हो, अल्लाह ताला की दो सिफात नहीं पाई जाती। एक वजूद ज़ाती मौजूद बिलज़ात होना कि वो अल्लाह ताला की सिफते हासा है, यानी ज़ाती वजूद और हमेशा कायम रहने वाला वजूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। और दोयम इस्तगनाए ज़ाती के ये भी अल्लाह ताला की सिफते हासा है। मुमकिन बंदा अल्लाह ताला से मौजूद होता है, उसका वजूद बिल अर्ज है। अल्लाह ताला का वजूद बिल ज़ात है, बिल अर्ज हमेशा बिल ज़ात का मुहताज रहेगा। मुमकिन हालत वजूद में भी मौजूद बिल अर्ज ही रहेगा। उसका इम्कान ज़ाती, उसकी बंदगी कभी उससे दूर ना होगी, वरना इनकलाब माहियात व हकाइक लाजिम आएगा। याद रखो तीन मफहूम हैं जो बहुत अहम हैं। वाजिब बिलज़ात, मुमकिन बिलज़ात, मुमतना बिलज़ात। वाजिब का वजूद ज़रूरी है, मुमतना का वजूद मुहाल, मुमकिन बजाते है महदूम है, यानी जो मुमकिन है वो महदूम है। वो वजूद वाजिब ताला से मौजूद होता है, लिहाजा वाजिब बिलज़ात ना मुमकिन बिलज़ात हो सकता है, ना मुमकिन वाजिब हो सकता है, ना मुमतना वाजिब हो सकता है, ना मुमकिन, वरना इनकलाब हकाइक लाजमी आए। यानी ये तीनों मफहूम, ये तीनों वजूद एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। बहरहाल मुमकिन और बंदे से वजूबे ज़ाती व अस्तगनाए ज़ाती कभी नुमाया ना होगा। बंदा हमेशा सरे अफगंदा रहेगा। ये अहले तसूफ के मुहावरे हैं, इससे वाकिफ रहना ज़रूरी है। शेख फरमाते हैं कमालात वजूद वाजिब ताला की वजह से नुमाया होते हैं, नकाइस अदम और इम्कान ज़्यादती का तकाजा है। तो बंदे को चाहिए अयूब और नकाइस में खुद को अल्लाह की सपर बनाए और ज़ाते हक तक नकाइस को पहुँचने ना दे, और कमालात मुजाहिदा में ज़ाते हक को अपनी सपर बनाए, यानी कमालात को उसकी तरफ मंसूब करे। यानी फरमाया मुझको मेरी बंदगी मुबारक तुझको तेरी शान किब्रियाई,
इस फुसे शे का मकसद ये है कि हम अपने आप पर गौर करें और हक़ ताला की तरफ राह निकालें। अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो ना जाओ मानित उन लोगों के जो खुदा को भूल गए, तो खुदा ने उनसे खुद उनके नफ्सों को भुला दिया, यानी मार्फत से नफ्स से महरूम हो गए। मशहूर कौल है, यानी खुद शनासी में खुदा शनासी है, यानी जो खुद को पहचाने तो वही खुदा की पहचान है। जिसने खुद को जितना जाना उतना ही अपने रब को जाना। जरा गौर करो, अगर वजूद हमारा जाती होता तो हमेशा हमको लाजिम रहता, हमेशा हमारे साथ रहता, यानी इसको मौत ना आती, एक जगह मुतय्यन रहता, तगय्युर और मुतगय्यर से दूर रहता, क्योंकि ज़ात से ज़ातियात जुदा व मनफक नहीं हो सकते। हालांकि हम बैनल अदमीन हैं, यानी दो अदम के दरमियान हैं। पहले भी मादूम थे और चंद रोज के बाद फिर मादूम होंगे, यानी पहले भी अदम थे और अब भी। जब वजूद हमारे लिए जाती नहीं है बल्कि बिलगर्ज है, तो कोई बिलजात मौजूद होना चाहिए, यानी कोई जात तो होना चाहिए, वरना तहकीक और वजूद बिलगर्ज का बगैर बिलजात के लाजिम आएगा। वो मौजूद बिलजात अल्लाह ही है। मादे और जसद की शान से इल्म नहीं है, इरादा नहीं है। आजकल मादे की सिफ्त बताई जा रही है इस्तमरार, यानी मादा मुतहरक है तो हमेशा मुतहरक रहेगा जब तक कोई उसको साकिन ना करे। साकिन है तो हमेशा साकिन रहेगा जब तक कि कोई उसको मुतहरक ना करे। जब मादे की ये हालत हो तो बिल इरादा हरकत कहाँ से आई? जरूर मजरो अन अल मादा से, गैर मादी से। जब हम गैर मादी है तो खुदाई ताला भी गैर मादी होगा। रात दिन सांस से, पसीने वगैरह से, कार्बोनिक एसिड गैस से कदीम और नाकारा मादा निकल जाता है और ग़िज़ा वगैरह से नया मादा मिलता जाता है, मगर मेरी अनानियत वही है, मेरी मालूमात और अलूम वही हैं। फनाए मादा से वो फना नहीं होते, लिहाजा मैं मादी नहीं हूँ तो मेरा रब क्यों कर मादी होगा। जब मादी ना होगा तो सिफात मादा से मुनज़्ज़ा व पाक होगा। हमारे जस्त की तरफ एक रूह मुदब्बर है तो तमाम आलम की भी सिर्फ एक ज़ात वाजिबा मुदब्बर है। बहरहाल हमारे अजज से उसकी कुदरत का, हमारे जहल से उसके इल्म का, हमारी मर्दगी व मौत से उसकी हयात का, हमारे अदम से उसके वजूद का पता मिलता है। इमाम अबू हामिद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगैर मार्फत नफ्स के भी वजूद बारी पर इस्तदलाल कर सकते हैं, और आपने वो दलाइल बयान फरमाए जो असबात व वाजिब में पेश किए जाते हैं। शेख फरमाते हैं कि इन दलाइल से सिर्फ इतना साबित होता है कि एक ज़ात हक्का है, एक वाजिबुल वजूद है, मगर उसके अस्मा व सिफात और तफसीलात का पता उस वक्त तक नहीं मिलता, यानी अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात और उनकी तफसीलात का पता उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक खुद पर गौर ना करे। वाफी अनफुसकुम अफला तबसिरून।